Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about the topic of the class 12, factors of investing decision. In our previous class, in our previous video, I already discussed about the financing decision, and the first financing decision is the investment decision. Today we will discuss about the factors affecting the investment decision. There are two types of the investment decision: long term investment decision as well as short term investment decision. I already discussed in our previous class, long term investment decision is also known as the capital busting decision, and short-term investment decision is also known as the working capital management. Whenever we make investment in the fixed assets is known as the long-term investment decision, and whenever we make investment in the current assets, short-term assets, is known as the short-term investment decision. Today we will discuss about the factor affecting the investment decision. The factors affect the long-term investment decision. There are three factors which affect the long-term investment decision. The long-term investment decision is also known as the capital busting decision. The factors are cash flow of the project, the rate of return, and the investment criteria involved. There are the three factors: cash flow of the project, rate of return, and investment criteria involved, which also relate to the long-term investment decision. In short-term investment decision, there are two factors which affect the decision of the working capital management: the profitability as well as liquidity. These are the major two factors of the working capital management decision: profitability as well as the liquidity. Today we will discuss all the factors in detail. Now I discussed about the long-term investment decision. Factors affecting the requirement of long-term investment decision. There are three factors. I already named them. First one is the cash flow project, second one is the rate of return, and third one is the investment criteria involved. The first one is cash flows of the project. Cash flow. Whenever we invest in fixed assets, it is necessary to analyze about the cash inflow as well as the cash outflow. कैश इनफ्लो मीन्स हमारे बिजनेस में कैश कितना हमें वापस मिल रहा है, मीन्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. एंड कैश आउटफ्लो मीन्स हाउ मच अमाउंट वी मेक इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स. And whenever we make investment in the fixed asset, this decision is known as the capital busting decision. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्स्ड असेट्स में, तो फिक्स्ड असेट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके बेस पर हमारा पहला फैक्टर है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. हम इन दोनों चीज को कंसीडर करेंगे. आपका जो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट है, या तो कैश हमारा आउटफ्लो होगा या हमारा कैश
इनफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो मीन्स whenever we make investment in the fixed asset, फिक्स्ड असेट्स में किसी भी टाइप की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश जो है वो बिजनेस से बाहर मूव करेगा। व्हेन अ कैश इज मूव फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस एंड वी मेक इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट, देन इट इज नोन एज द कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कभी भी हम किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में हमें जितनी भी रिटर्न मिल रही है उस रिटर्न से बेस पर हमारे पास कैश बिजनेस में रिसीव होगा। तो जब भी आपका बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। Whenever we make investment decisions, it is necessary to analyze both of these factors, cash inflow and outflow, and after the analysis of these factors we make investment decision how much amount we make investment in the fixed asset. It is the first factor of the long term investment decision, cash flow of the project. Now the second one is the rate of return. रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कभी भी हम किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है। द प्रॉफिटेबिलिटी, or you can say that the project may not be profitable as compared to others। कि हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है तो जो आपका वो प्रोजेक्ट है वो आपका प्रॉफिटेबल हो भी सकता है और नहीं भी, एज कम्पेयर टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में। तो उसके बेस पर हमें एनालिसिस करना पड़ता है किसका, प्रॉफिटेबिलिटी का। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, द प्रॉफिटेबिलिटी टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो किसके बेस पर हमारी डिसाइड की जाती है, रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी जिससे बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चलेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज द रिस्क अटैच्ड विद इट। कि आपका जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उस रेट ऑफ रिटर्न को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमें कितनी एक्सपेक्टेशन है, हमारी कितनी रिटर्न होगी और उसके साथ हमारा कितना रिस्क अटैच कर रहा है। इन दोनों चीज को कंसिडर करके हम अपनी रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, there are two projects, project A and project B. In project A, return is 15% and project B, return is 10%. Then we also consider the risk attached with the project, and the risk attached with the project A and project B will be the same. जो आपका रिस्क है वो दोनों प्रोजेक्ट के साथ क्या है, बिल्कुल सेम है। तो उस केस में हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमें हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट वी ओनली टेक डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट और नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न बट आल्सो एनालाइज द रिस्क अटैच्ड विद द प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी द रिस्क आर सेम बट द रिटर्न ऑफ ए इज मोर देन बी, सो वी विल सेलेक्ट द प्रोजेक्ट ए which provide the higher return to the investor. So it is the second factor of the investment decision, the rate of return. Now the third one is investment criteria in board. जो आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उसके बारे में हमें डिसाइड करना है कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है या नहीं। तो कभी भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
various factor on the basis of which we will analyze any amount in when an investor wants to invest, he will analyze the various factors which is related to the investment decision. The factors is funds involved, कितनी amount हमें चाहिए, rate of interest, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, रेट ऑफ रिटर्न, हमें कितना पैसा हमें वापस मिलने वाला है, कैश फ्लो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे टेक्निक्स हैं कैपिटल बस्टिंग की, उनको कंसीडर करना है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व है इसमें वो सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे जिसके बेस पर हमें डिसीजन लेना है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अब इन फैक्टर्स के बेस पर फंड्स इन्वॉल्व, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऑल दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर वेदर ही विल इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। Not only the basis of these factors, but also there are various type of the capital busting techniques. On the basis of that, a particular investor can take decision about the investment. Capital busting techniques also affect the requirement, affect the investment on the fixed asset. There are various methods, various techniques. Net present value method, payback period method, discounted rate of return method, and many more, etc. So these are the decisions which affect, these are the techniques which affect the requirement of the long term investment, and the factors which affect the requirement of the long term investment decision, cash flow of the project, rate of return and investment criteria involved. On the basis of these factors we analyze our requirement, our investment, and after that we make investment in the fixed assets. It is the long term investment decision. I hope it's clear to you. Now the factors affecting the requirement of the short term investment decision. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे वो हमने बताए थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेकंड वन इज द लिक्विडिटी। नाउ द सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कीपिंग द एडिक्वेट अमाउंट, कीपिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल at all the times in the business is called management of working capital. आपकी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसका मीनिंग क्या है? कीपिंग द एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब है सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कभी भी नाइदर मोर देन रिक्वायर्ड नॉर लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी अमाउंट हमें चाहिए ना तो उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, एट ऑल द टाइम इन द बिजनेस, बिजनेस में हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। उसको मैनेज करना क्या कहलाता है? आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडिक्वेट अमाउंट। आपकी जो एडिक्वेट अमाउंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो एडिक्वेट अमाउंट है वर्किंग कैपिटल जो है वो सफिशिएंट क्यों होनी चाहिए? मोर देन रिक्वायर्ड, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा हो, लेस देन रिक्वायर्ड, या हमें वर्किंग कैपिटल जितनी चाहिए उससे कम हो। तो एडिक्वेट अमाउंट वो अमाउंट है कि हमारी वर्किंग कैपिटल ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही वर्किंग कैपिटल हमारी कम होनी चाहिए। उसके ड्रॉबैक कैसे हैं वो देखते हैं। अगर हम ये मानते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड। इफ वी हैव
the working capital more than the adequate amount, means our working capital is more than the adequate amount, then our liquidity position will become good. We make payment easily to our creditors and the outsider, and our liquidity position will become very very good. But our profitability will decrease. How the profitability of the business will decrease? When we have more than the working capital required as the adequate amount. When we have more than working capital means we have more cash. More cash means the cash amount is more than required. हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारे पास कैश है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कैश तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो कैश हमारा मोर देन रिक्वायर्ड है वो बिजनेस में हमारे पास आइडल पड़ा रहेगा, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हमारे पास ऐसी कोई अमाउंट है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बिजनेस में आइडल पड़ा है, तो उससे क्या होगी? एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, उसको हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है तो उस पर रिटर्न आएगी, या फिर हमने इस कैश को एज अ लोन ले रखा है तो इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका ये ड्रॉबैक है मोर देन रिक्वायर्ड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है तो लिक्विडिटी तो हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं। वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश। वी मेक पेमेंट इजीली टू अवर क्रेडिटर एंड द अदर पार्टी, बट it will reduce the profitability of the business. How it reduce the profitability of the business? If we have cash amount more than required, then the cash will remain idle in our business, and it will the loss of the opportunity, as well as it will increase our opportunity cost. And if we take the amount of cash from the third party as a loan, then we will make payment of the interest on it. Then it will decrease our profitability of the business. So it is harmful of our business. In the same manner, if our working capital requirement is, if we have working capital less than required, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल जितनी हमें चाहिए उससे कम है तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो इम्प्रूव होगी क्योंकि हमारे पास जितना हमें कैश चाहिए उससे कम है, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो आपकी वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन आपकी जो लिक्विडिटी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंट कैश फॉर मेक पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो उससे हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या होगी? डाउन हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है और वो कौन सा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल हमारी सफिशिएंट होनी चाहिए, मींस एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो। हमारी वर्किंग कैपिटल ना तो हमारी वर्किंग कैपिटल मोर होनी चाहिए और ना ही लेस होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट हो, जितनी हमें अमाउंट चाहिए वर्किंग कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए। आपके जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी है और आपकी लिक्विडिटी है। These are those factors which affect the profitability and liquidity and affect the investment decision. So today we discussed about the factors affecting the investment decision, long-term investment as well as the short-term investment. Long-term investment decision, the factors are cash flow of the project, rate of return, investment criteria involved. But in short-term investment decision, the factors are the profitability and liquidity of the business, and these factors influence the investment decision about the working capital. Our working capital neither be more nor be less than the required. It should be sufficient and adequate. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.